Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good, and yes, I'm also doing good. Budget 2019 has been presented by the Honorable Finance Minister today, and we will be looking in this video ki how it impacts you, how it impacts the direct and indirect tax, and we're doing the analysis of all the provisions which has been announced by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman. So budget 2019, it was an election year. Interim budget was announced in the month of February, and now it's a final budget of 2019. And let us do the analysis as far as the direct taxes and indirect taxes is concerned. So as far as FM, first of all, what she did is, thanks to the honest taxpayers and responsible citizens of India, there were a lot of expectations from the finance minister because this was the first budget after the Modi government, reappointment of Modi government, and the first budget. There were a lot of expectation, but there is no change in the personal income tax rate. Yes, you heard it right. There was a lot of expectations that yes, there will be something like 5 lakh or 10 lakh, or there will be something changes in the slab. But yes, there is no change in the slab rate. In the interim budget, Piyush Goyal ji has announced that there will be no tax up to the income of 5 lakh, but it does not mean that 5 lakh की income पे आपको tax नहीं देना है. The slab remains 2.5 and 3 lakh, and 2.5 for the normal SSC, 3 lakh for the senior citizen. And now what today finance minister said is no tax and no income tax return required to be if the total income after the deduction is up to 5 lakh rupees. If your total income after all the deductions is up to 5 lakh rupees, then you don't need to file the income tax return. Now, what do you mean by no income tax up to 5 lakh rupees? In the interim budget also, it was very confusing. Let us do an example. If your total income after deductions under section 80C and all, what you take is 5 lakh, or in the other case is 510, then what is the difference? If it is 5 lakh, then it will be taxed at per 2,50,000 tak there is no tax. 2,50,000 ka 5%, it will be taxed 12,500, and you will get the rebate under section 87A, because as per the interim budget there was an amendment in section 87A. It is very important to note that there was an amendment in the interim budget for 87A. Income tax slabs have not been changed. It is 2.5 lakh only, but there is an amendment in 87A that if your total income is up to 5 lakh, then you will get the exemption up to 12,500, and your balance will be nil, education cess will be nil, and tax liability will be nil. But on the other hand, if you're not that much fortunate, and if your income is 5 lakh 10,000, then you will be taxed 2.5 lakh 5%, plus you will be taxed 10,000 ka 20%. So you will get 14,500, and there will be no rebate under section 87A. This is very important, and you will be continued to tax 14,500. Health and education cess at the rate of 4%, and your tax liability will be 15,080. So this is very important. There is no change in the personal income tax rate. No benefit for you, no benefit for me. Very, very, very upset with the finance minister, because there were a lot of expectation. This was the first budget after the reappointment of Modi government. As far as direct tax revenues are concerned, direct tax revenues have increased to these many lakh crores. This was announced by finance minister. Corporate tax may this is a very good change. I'll be appreciating the good changes done by the finance minister, and I'll be definitely saying no, and I'll be regretting not so good changes. The tax rate was 25% of the companies with a turnover up to 250 crores. Now it has been increased to 400 crores. Turnover up to 400 crores, जो भी कंपनीज है उस पर अब 25% टैक्स रेट लगने वाला है, एंड इट विल कवर 99.3% ऑफ द कंपनीज. मोस्टली कंपनीज कवर हो जाती हैं. जीएसटी रेट रिड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम 12% to 5%. Electric vehicles are the new kind of vehicles which are going to come into India. Many automobile companies are manufacturing electric vehicles, तो उस पे जीएसटी रेट 12 से 5% कर दिया है, and it's very good step. Tax reduction on loan taken for the purchase of electric vehicle. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं और उस पे आप लोन लेते हैं, तो सरकार आपको 1.5 लाख रुपीस के इंटरेस्ट ऑन लोन तक का आपको अलग से डिडक्शन देगा. Now why this is being
highlighted because government wants that अगर आप न्यू व्हीकल लेना चाहते हैं, whether it is a car, whether it is a two-wheeler, then you should go for electric vehicle. इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको जीएसटी भी कम कर दिया, और अगर आप लोन लेते हो और उस पर इंटरेस्ट देते हो 1.5 लाख रुपीस तक का, तो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, एंड बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल एंड डीजल्स को रिप्लेस करने वाले हैं। स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है स्टार्टअप्स वुड बी not be required scrutiny by the IT department. स्क्रूटनी जो हमारी 143(3) में होती है वो हमारे स्टार्टअप्स के लिए नहीं होगी। दैट इज अ गुड स्टेप कि स्टार्टअप्स हमारे मैक्सिमम इंडिया में हो। एडिशनल रिडक्शन ऑफ 1.5 lakh फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन्स बोरोड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। इफ यू बाय एन अफोर्डेबल हाउस, अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या मतलब है कि 45 लाख रुपीस तक का अगर कोई आप घर लेते हैं, तो अगर आप उस पर लोन लेते हैं और आप इस पे इंटरेस्ट देते हैं तो 1.5 लाख रुपीस की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। दैट इज वेरी गुड स्टेप बिकॉज गवर्नमेंट वांट, जो जेन्युइनली अच्छे स्टेप्स हैं उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और जो नहीं है हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर और कांग्रेस सपोर्टर, हम नॉर्मल एक पीक लेवल पे एक समझ के चल रहे हैं। 1.5 लाख रुपीस एडिशनल रिडक्शन गवर्नमेंट देगी, बहुत अच्छी बात है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो सबको, हमें हिंदुस्तान में सबको एक घर मिले। एसटीटी लेवी ओनली ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सेटलमेंट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इन द केस ऑफ ऑप्शंस। एसटीटी लेव ऑफ कर दिया गया है। एसटीटी जो हमारी शेयर्स पे लगता था, सिक्योरिटीज पे लगता था, उसको खत्म कर दिया है। सिर्फ ऑप्शंस के हमारे जो ऑप्शंस जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उसमें अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो सेटलमेंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस पे सिर्फ एसटीटी रह गया है, बाकी सब एसटीटी, सब जगह एसटीटी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, appreciated step because पैन कार्ड सबके पास नहीं है, आधार कार्ड अराउंड 120 करोड़ पीपल के पास है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो जहां पे पैन कार्ड लगता था वहां पे अब आधार कार्ड से भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, सारे काम आप कर सकते हो। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। फेसलेस ई असेसमेंट फॉर टैक्स स्क्रूटनी। हमारी डिपार्टमेंट ये कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, यहाँ पे जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, जहाँ पे भी ह्यूमन की बिलोंगिंग्स हैं, तो वहाँ पे करप्शन है, कुछ अनएथिकल चीजें होती हैं। तो हम फेसलेस ई असेसमेंट करेंगे, ऑनलाइन सारी असेसमेंट्स होंगी और कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। वेरी गुड स्टेप, क्योंकि अगर मुझे कोई ह्यूमन से इंटरवेंशन नहीं करना तो कोई भी करप्शन नहीं होगी, कोई भी मुझे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। TDS of 2% on the cash withdrawal exceeding 1 crore from a bank account per year. This is also a very good step because गवर्नमेंट चाहती है कि आप सारी ट्रांजैक्शन डिजिटली करें, आप पेटीएम यूज करें, NEFT करें, RTGS करें, या जो भी आप पेपैल यूज करें, जो भी आप गूगल पे यूज करें, बहुत ऑप्शंस हैं। तो सर 2% आपको कैश विड्रॉल पे TDS लगेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा बैंक में से विड्रॉ कर रहे हैं कैश एंड इन 1 ईयर, क्योंकि बिजनेस वाले ही इतना मोटा अमाउंट विड्रॉ करेंगे। नो चार्जेस फॉर कस्टमर ऑन डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स। हमें जो चार्जेस लगते हैं डिजिटल मोड्स में, जैसे पेटीएम में बिजनेस अकाउंट में चार्जेस हैं, RTGS में चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस भी खत्म करने की बात हो रही है। प्रपोज टू एनहेंस द सरचार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 to 5 crores। हमारे जो एक्स्ट्रा इनकम वाले लोग हैं, जो हायर इनकम वाले लोग हैं, जो 2 से 5 करोड़ पर ईयर कमाते हैं, उन पे हम सरचार्ज लगाने की बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि उनको नहीं फर्क पड़ता अगर 5%, 7% कुछ सरचार्ज लग जाता है। सिंप्लीफाइड एज फार एज GST is concerned. Now I'll be talking about GST. Simplified single monthly return in GST for taxpayer having turnover less than 5 crore. It's a very good step because GST के 2 साल हो गए हैं, 2-year anniversary has been celebrated on 1st of July. हमारे GST में 1.5 करोड़ की जो टर्नओवर है उसमें हमें
ऑप्शन मिलता है कि हम मंथली फाइल करें या क्वार्टरली फाइल करें, लेकिन अब सरकार कहती है कि एक ही रिटर्न होगी 5 करोड़ तक के टर्नओवर में। जो मल्टीपल रिटर्न्स हैं वो वन रिटर्न को सब्स्टिट्यूट कर जाएगी। ऑटोमेटेड जीएसटी रिफंड सिस्टम टू बी इनिशिएटेड। जीएसटी के रिफंड्स बहुत अटके पड़े हैं। आई हैव क्लाइंट्स जो जीएसटी के रिफंड्स के लिए बहुत परेशान है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली सेड कि ऑटोमेटेड जीएसटी रिफंड जो हमारे ऑटोमेटेड हमारा पोर्टल में अपने आप रिफंड आएगा। लेजर्स हमारे सारे एक ही लेजर से सारे एक ही लेजर रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम प्रपोज, नो नीड ऑफ सेपरेट ई-वे बिल फ्रॉम 20 Jan 20। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम जीएसटी में इंट्रोड्यूस होगा और वो ई-वे बिल में जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो खत्म हो जाएगी। एंड कस्टम ड्यूटी में यहाँ पे बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी रेज कर दी गई है ऑटो पार्ट्स में, सीसीटीवी में, टाइल्स, मेटल फिटिंग्स, माउंटिंग ऑफ फर्नीचर्स, पीवीसी और कुछ आइटम्स में। तो दिस इज गुड एंड दिस इज बैड ऑल्सो, क्योंकि सर ये कस्टम ड्यूटी राइज करी गई है कि सरकार कहती है कि इसको मेक इन इंडिया में, हम इंडिया में इसको बनाएं और बाहर से कम इंपोर्ट करें और कम से कम कस्टम ड्यूटी दें। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारी चीज़ें इंडिया में बननी एकदम से शुरू हो जाए। ऑटो पार्ट्स अगर सर इंडिया में नहीं, अगर ऑटो पार्ट्स मारुति सुजुकी या टोयोटा या महिंद्रा बाहर से इंपोर्ट करती है तो उसके ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। वो महंगे हो जाएंगे तो उनकी सर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो सर आप और मैं अगर गाड़ी लेने जाएंगे तो सर वो महंगी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खतरनाक हैं। 5% कस्टम ड्यूटी इंक्रीज ऑन इम्पोर्टेड बुक्स बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं, ये भी सरकार चाहती है कि यहाँ पे प्रिंटिंग हो, यहाँ पे हमारी बुक्स लिखी जाए, लेकिन कुछ बाहर की बुक्स भी इंडिया में आती हैं तो वो महंगी हो जाएंगी। इंक्रीज इन द कस्टम ड्यूटी ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम 10 to 12.5%। तो गोल्ड महंगा होने वाला है। अगर आप गोल्ड के शौकीन हैं तो सर गोल्ड की जो कस्टम ड्यूटी है 10 से 12.5% होने वाली है। एंड इंक्रीज इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 1 रुपी पर लीटर। दिस इज नॉट दैट गुड स्टेप, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल हमारे डे टू डे यूज होता है। इसका एक और भी पर्पस हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन दे रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को के हम खरीदने पे एडिशनल डिडक्शंस भी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 1 रुपये पर लीटर बढ़ा देना मीन्स पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। एंड आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो कंप्यूटेशन है, जो सारा आप ट्रैवल करते हैं, वो महंगा हो जाएगा कुछ हद तक। एंड डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट करेगा, राइट। तो these were the basic things, basic analysis which I did as far as income tax is concerned and as far as GST and custom duty is concerned for the budget 2019, which is being presented in the parliament by Nirmala Sitharaman ji, of Honorable Finance Minister. I hope you will like this video. इसको spread कीजिए, अपनी knowledge enhance कीजिए, because हम यहाँ पे knowledge की बात करते हैं। Thank you for watching. इसको comment कीजिए, कोई भी doubt हो like कीजिए, share कीजिए, and if you're new to my channel, subscribe. Thank you for watching. Stay connected. Stay blessed. Bye bye.